myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. Okay, so in this lecture we are going to start a very new chapter, and that is the complex number chapter. And I think this binomial theorem chapter was completed for class 11, and this complex number chapter is going to be started of this class 11. Okay, so before starting this complex number, the various concepts are there which are need to be discussed and which are related with the complex number concepts also. Okay, so at first the question arises that what is complex number? Okay, so it is a number, actually just complex number word is used, that means what? It is a number, but what do you mean by this complex number? Okay, so I think those who have actually this advanced mathematics in the junior classes, that means in your previous classes, then I think they might have got this complex number chapter as well in the junior classes. That means I mean to say that in class 9 and 10, I think. Okay, those who had not this advanced mathematics, then I think it is the new chapter for them. And most importantly, those who had got this complex number chapter in the previous classes also, this chapter is going to be advanced, and the various concepts and various things will be introduced, newly introduced in this chapter, I think, which was not discussed and which was not introduced in the junior classes as well. Okay, you might have this advanced mathematics. Okay, but the various concepts and the new concepts and new things will be introduced in this chapter, and it is the 11th standard, because this 11th standard studies is directly related to your advanced, that means JEE main and advanced level exams. Okay, in the JEE main and advanced exams, I think in that exams, in that type of exams, questions will not come from class 10th and 9th. Okay, so maybe you had got this complex number chapter, those who had this advanced mathematics in the previous classes, and I think you had got this complex number chapter. But in class 11, 12 standard complex number, the base structure will be same, but little bit I think it will be advanced level. Okay, it will be in the advanced level, and you need to concentrate, and you need to be very much attentive in the lectures as well. Okay, so that you can get more and more knowledge from my lecture and from the class as well. Okay, so before starting this complex number, some basic concepts, some theories, and something should be discussed, and that is, in this universe till now, whatever the numbers we have got, okay, they are only the real numbers. Okay, real numbers means 1, 2, 3, 4, 5, 6, whatever the number, okay, we are getting right now. Okay, and these are all real numbers. 1, 2, 3, 4, any fraction, any irrational number, rational number, okay, decimal number, whatever the number it is, just these are all the real numbers. But what is complex numbers? ये complex number, ये जो concept है, कहाँ से आया है, कैसे ये कॉन्सेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। जैसे देखो, कुछ ऐसा टाइप का इक्वेशन है जहां पर आप अगर x का सॉल्यूशन या फिर किसी भी एक वेरिएबल का अगर वैल्यू निकालते हैं, वो सब वैल्यूज का जो आंसर, दैट मींस वो जो वैल्यूज आएगा x और y और फिर z जो भी हो, जो वैल्यूज आएगा वो वैल्यूज देखने में वो रियल नंबर नहीं लगता है, ठीक है। तब साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियंस लोग हैं, उन लोगों ने सोचा कि ये तो न्यू नंबर्स हैं, देख ये तो पहले कभी नहीं देखा मैंने, ठीक है ना। तो ये जब न्यू नंबर इंट्रोड्यूस हुआ है, तभी मतलब इसको नाम दिया गया है, एक न्यू नाम दिया गया है, उसको बोला जाता है आयोटा, ठीक है, नाम दिया गया है। कौन से नंबर्स को यहाँ पर आयोटा नाम दिया गया है, जस्ट लिखो। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सबसे पहले हेडिंग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आयोटा। आयोटा, व्हाट इज आयोटा, ठीक है। इफ वी
solve x square plus 1 equals to 0. I think in the junior classes, linear equation in two variable and this quadratic formulas, quadratic equations, I think were solved. Different questions were there in class 10 and in class 11 also. Okay, just using middle term factorization method and then factorization, normal factorize this biquadratic equation formulas. These are all I think the process of solving this quadratic equations as well. And it is also a quadratic equation. Okay, and if you want to solve these things, that means what? You need to find the value of x. You need to find the value of x here just. Okay, so if you want to find the value of x, then I think all the constant terms should be towed away to the right hand side. Okay, that means x square, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर हटाऊं, that means रूट ओवर माइनस 1. ये रूट ओवर माइनस 1 मैथमेटिशियन लोग जब देख रहे हैं कि ये रूट ओवर माइनस 1 देखने से ये तो न्यू लग रहा है. पहले तो मतलब हम लोग को ये जो नंबर है रूट ओवर माइनस 1 ये तो कभी नहीं मिला है हम लोग को. हम लोग अभी इसको क्या नाम दे, इसको क्या नंबर बोले उसको है. तब मैथमेटिशियन लोगों ने इसका नाम दिया है आयोटा, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. रियल नंबर में तो है नहीं, अगर रियल नंबर में होता तो अभी तक तो हम लोग को मिल जाता है यहाँ पर. ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने उसको मतलब मैथमेटिशियंस लोगों ने ये जो रूट ओवर माइनस 1 है उसको आयोटा नाम दे दिया. और यही सब नंबर्स जो होता है ना रूट के अंदर -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये सब नंबर जो है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दे दिया. दैट मींस ये रूट ओवर -1 इसको ही I से नाम दिया गया. That means I for iota. So here I equals to root over -1. I equals to I for iota है ना, तो I से ही दिया गया. फिर I स्क्वायर क्या होगा? -1. I स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1. तो ये है iota का इंट्रोडक्शन. Now a complex number, ठीक है, a complex number can be written as x plus I y, where x, y belongs to कहां से? रियल नंबर से ही बिलोंग करता है. दैट मींस x और y जो है वो रियल नंबर से ही होगा. बट यहाँ पर I यूज हो गया. दैट मींस ये आयोटा इंट्रोड्यूस कर दिया. दैट मींस ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, वो रियल नंबर का पार्ट नहीं है कि नहीं. सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज defined by z equals to x plus I y. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? z equals to x plus I y. where x और y क्या है? x और y दोनों रियल नंबर ही होगा. ठीक है, तो अगर मैं उसको ज्योमेट्री के लिए थोड़ा रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, ज्योमेट्री के लिए अगर मैं उसको सोचूं, ये x प्लस y ओरिजिनली जो है वो है क्या? यही तो है ना क्वेश्चन. जैसे ये x और ये y. सपोज यहां पर एक पॉइंट है x, y. सो दैट मींस यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दैट मींस दिस हाइट इज y एंड दिस लेंथ इज व्हाट? x, राइट? एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट P. ठीक है, अगर मैं यहां पर रियल नंबर बोलूं, रियल नंबर, सो ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या है? हाइपोटेन्यूज है. किसका? ये राइट एंगल ट्राइंगल का. उसका वैल्यू क्या है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. कैसे? हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम मिला है क्या आप लोगों को? पाइथागोरस थ्योरम. तो यहां से ही हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वो स्क्वायर हटके यहाँ पर रूट ओवर आ गया.
तो ये देखो, ये रियल नंबर में रिप्रेजेंट ऐसा होता है, ठीक है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी चीज को, इसी को ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोड्यूस दैट मींस करेंगे, तो उसको आप लिखेंगे x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। दैट मीन्स ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मतलब उसका ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल नंबर में ऐसे इंट्रोड्यूस होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स प्लस आई वाई ऐसे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल अगर लूं, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लूं, रिप्रेजेंट द पॉइंट, रिप्रेजेंट a point 2,3 on complex field। कॉम्प्लेक्स फील्ड मतलब मैदान है कि नहीं, उस मैदान में सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होगा, रियल नंबर्स नहीं होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट को कॉम्प्लेक्स फील्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ये एक पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, दैट मींस ये हाइट आपका 3 होगा और ये हाइट आपका x नहीं, यहाँ पर क्या है 2 होगा। तो ये जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x प्लस आई वाई, दैट मींस 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i, उसको आप z नाम दे सकते हैं। पहले z इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हर टाइम आप z से ही लिखेंगे, z से ही आपको लिखना है, z मतलब ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, तो दैट मींस 2 प्लस 3 है। तो ऐसे किसी भी एक पॉइंट को, जैसे 2 प्लस 3, 2,3, ये तो रियल नंबर फील्ड में है, ये तो रियल फील्ड में ऐसे लिखते हैं पॉइंट को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे आओगे तब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को ऐसे नहीं लिखोगे, पॉइंट को लिख लोगे ऐसे 2 प्लस 3i। ये 2 प्लस 3i इसका मतलब ही ये बनता है कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3, ठीक है। सो ठीक है, तो यहां पर देखो, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिखा है, ये रियल नंबर में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये जो कन्वर्शन है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, एक हेडिंग दो, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये मॉड्यूलस है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जैसे यहां पर एक इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स, दैट मीन्स आप सपना देख रहे हैं, ठीक है, आप सपना देख रहे हैं यहां पर। अच्छा, आप सपना देख रहे हैं जैसे आप मंगल ग्रह में बैठे हैं, मंगल ग्रह मार्स में, यू आर सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, ओके, जस्ट यू आर just thinking, you are just thinking that you are sitting on the surface of Mars, okay, just in your dream, not in real, okay. But after some time, your dream, that means when you are dreaming, no, that means your dream is broken, okay. How? Just I have slapped on your face. अगर मैं आपको 2 गाल पे 2 थप्पड़ मारूं आपको, आपका सपना जो है वो टूट जाएगा। टूटने के बाद आप रियल वर्ल्ड में आप लोग आ जाएंगे। अब रियल वर्ल्ड में देखा तो इधर तो मेरा घर ही है, मार्स तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दैट मीन्स किसी भी सपने से अगर मैं रियल वर्ल्ड में आना चाहूं तब एक बहुत ही सुंदर प्रोसेस होता है, वो है 2 गाल में 2 ऐसे थप्पड़, ठीक है। तो थप्पड़ मारने से क्या होता है, आप इमेजिनरी वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आप लोग डेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही से अगर आप सपोज सपना देख रहे हैं, लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इमेजिनरी नंबर, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ
मॉड z, इसको बोला जाता है मॉड साइन, दो गाल के दो थप्पड़, दैट मींस ये x प्लस आई वाई मॉड दे दिया। अब मॉड यूज करने से क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। दैट मींस there is no I, there is no, that means complex number related concept. That means there is no I. If this iota is excluded, that means this new number is not the complex number as well. If this iota is introduced, that means what? This particular number is complex number. If iota is excluded, iota को आपने अगर बाहर निकाल दिया, iota अगर नहीं है, that means I, ये अगर नहीं है, that means this number is not a complex number. It is the real. So here you can see this root over x square plus y square. It is the real number. यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका है। देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई ऐसे डिनोट होता है। रियल नंबर में कैसे डिनोट होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये एक ही लाइन को आप लोग दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में, दूसरा रियल नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे एक्स प्लस आई वाई, रियल नंबर में कैसे लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में से रियल नंबर में बैक करने का जो तरीका है, वो तरीका आपको दो गाल में दो थप्पड़ लगाना पड़ेगा, तब आप बैक कर लेंगे कहां पर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट लिखो, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है, ठीक है ना। फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग दो, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एम्पलीट्यूड, ये नाम भी थोड़ा मतलब न्यू लग रहा है? This word amplitude, it seems like a very new concept and very new word. But let me tell you, this amplitude is not a new word and not a new concept as well. Okay, just I think you have got the idea in the real number that angle. This angle word is I think is this angle word, I think it is converted to the new word amplitude in the complex number. So जो हम लोगों ने जो वर्ड रियल नंबर में हम लोगों ने यूज किया है, वही वर्ड तो सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में तो यूज नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपने सेम वर्ड यूज कर दिया, दैट मीन्स रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में तो डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो है amplitude of a complex number, just give the heading amplitude of a complex number. Let z equals to x plus iy is a complex number. Then the amplitude of z is denoted by AMP of z equals to, लिखने का स्टाइल ऐसा है, amp z, that means amplitude of z, that means you are finding the angle. Which angle? Just see. This is your complex number. Okay. So if you draw the figure, x-axis, y-axis, and this point is x, y, and this line is what? X plus iy, and this part is y, and this part is x, and this angle theta. This angle theta. That means you are finding this angle theta. Okay. So that means amplitude of z, theta equals to tan inverse y by x.
मॉड यूज करना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई x। ओके, tan इनवर्स y बाई x। किसी बुक में ऐसे भी लिखा होगा tan इनवर्स मॉड y बाई x, ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल, दैट मीन्स ये पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते हैं, x प्लस आई वाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाया है उसको ही एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, y बाई एक्स, और आपको मॉड भी देना पड़ेगा। दैट मीन्स यू आर यूजिंग दिस मॉड, दैट मीन्स व्हाट, नेगेटिव नंबर विल नॉट कम। If the negative number is not coming, that means what? All the angles will be acuted. That means in the first quadrant. In the first quadrant, 0 to 90 degree. That means all the angles, that means all the amplitude values will be less than 90, greater than 0. ठीक है, हो गया। अगर यहाँ पर मॉड ना होता तो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है। अगर 10 का वैल्यू नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे वो 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू होगा, 180 से छोटा होगा, जो एम्पलीट्यूड आपको परमिशन नहीं देता है। एम्पलीट्यूड मतलब है आप मॉड यूज करेंगे, दैट मीन्स ऑल द एंगल्स विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नाउ फिर आपने एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल दिया ना। फिर उसका बाद हेडिंग दो, conjugate of a complex number, conjugate of a complex number, conjugate of a complex number। next heading, next concept, conjugate of a complex number, conjugate of a complex number। next heading, conjugate of a complex number। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, जुड़वा भाई होता है। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ कॉन्जुगेट मीन्स व्हाट, जुड़वा भाई। सो conjugate of z is denoted by z bar, okay, and it is represented as z bar इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। अच्छा, यहां पर देखो, जैसे जुड़वा भाई होता है ना, ट्विंस में एक बच्चा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक बच्चा जो है थोड़ा वीक होता है। ठीक है, एक बच्चा अगर शांत हो, दूसरा बच्चा बहुत चंचल होगा। दैट मीन्स उन लोगों का जो नेचर है ठीक ऑपोजिट होगा। ट्विंस में ज्यादातर केस में क्या होता है, एक बहुत ही शांत होता है, एक जो है बहुत मतलब स्पाइडरमैन बैटमैन होता है नहीं। सो एक दूसरे का नेचर जो है ठीक ऑपोजिट होता है। यहाँ पर z x प्लस आई वाई, तो ठीक उसका ऑपोजिट नेचर, दैट मीन्स z बार, और यहाँ पर ऑपोजिट साइन, दैट मीन्स प्लस साइन अगर है वो माइनस हो जाएगा, ये अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स ऑपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक ऑपोजिट आपको यूज करना है। ठीक है? फिर उसके बाद हेडिंग सम properties of complex number, some properties of complex number, some properties of complex number। ठीक है, in z equals to x plus आई वाई,
ये z को बोला जाता है, सॉरी x को बोला जाता है रियल पार्ट और इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर आपको बोला जाए कि REZ, इसका मतलब क्या होता है? REZ इसका मतलब क्या होता है? रियल Z। दैट मीन्स Z में, ये Z में रियल पार्ट कौन सा है? X। अगर आपको बोला जाए इन Z मतलब इमेजिनरी Z, कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी Z मतलब इन Z मतलब Y। दैट मीन्स Y क्यों इमेजिनरी पार्ट है? क्योंकि I के साथ y जो है वो चिपका हुआ है ना, इसलिए इन z को बोला जाता है y, रियल z को बोला जाता है x। ठीक है, दैट मींस ये रियल पार्ट इमेजिनरी। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, if z1 equals to x1 plus y1 and z2 equals to x2 plus y2, तो z1 plus z2 निकाल के देखो तो कितना होता है? x1 plus y1 plus x2 plus y2 equals to x1 plus, ये देखो ये दोनों नॉर्मल नंबर्स हैं, उसको एक साथ लिखता हूं और बाकी जो दोनों आई रिलेटेड टर्म्स हैं उसको अलग लिखना है आपको, बिकॉज ये आई रिलेटेड टर्म और आई के बिना जो टर्म्स हैं वो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, याद रखना। दैट मींस x1 प्लस x2 और यहां पर आई अगर मैं कॉमन लूं y1 प्लस y2। ठीक है, सिमिलरली अगर आप z2 प्लस z1 निकालेंगे, z2 प्लस z1, ये भी देखो x2 प्लस y2 और इधर x1 प्लस y1, तो क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली तो शायद एक ही आंसर निकलता है, दैट y1 प्लस y2। सो दैट मीन्स, सो दैट इज ऐसे लिखो, सो दैट इज z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1। लिख सकते हैं ऐसे हम लोग, है कि नहीं? हाँ, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 जाओ, z1 इंटू z2 करके देखो तो कितना होता है? x1 प्लस y1 x2 प्लस y2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, करो तो x1 x2 i x1 y2 i y1 x2 और इधर i स्क्वायर y2 स्क्वायर मल्टीप्लाई किया गया और कुछ नहीं। जैसे हम लोग ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर देखो x1 x2 i रिलेटेड टर्म्स कौन सा है? ये दोनों i कॉमन ले लेते हैं, x1 y2 प्लस y1 x2। i स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने कुछ देर पहले शायद लिखा है -1 y2 स्क्वायर, y2 स्क्वायर सॉरी y1 y2। So that means x1 x2 ये प्लस माइनस y1 y2 एक ब्रैकेट में ले लिया और i रिलेटेड टर्म्स जो है x1 y2 प्लस y1 x2 इसको मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहां पर z2 इंटू z1 निकाले, z2 इंटू z1, ये भी सेम आंसर ही होगा। इसका आप आंसर जो है निकाल के देख सकते हैं। z2 क्योंकि देखो एडिशन में भी ऐसा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसा हुआ है। सो हाउ could I know this thing? This in the multiplication theorem, the same concept and the same thing will be repeated, because in the addition, if two numbers are added, that means 2 plus 3, 5. 3 plus 2, 5. That means
If you interchange the numbers also, then I think ultimate answer will be same. In the multiplication, 3 into 2, 6. 2 into 3, 6. तो I think नंबर में, रियल नंबर में ये जो है सेटिस्फाई होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सेटिस्फाई होगा, है कि नहीं? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर. सो दैट मीन्स यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, सो Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1. ये भी हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, फोर्थ में जाओ. फोर्थ में एक हेडिंग दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, पॉइंट नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, इफ z equals to x plus iy be any complex number, कोई भी एक नंबर है, z equals to x plus iy, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, then multiplicative inverse is z1 equals to a plus ib. ठीक है, then ऐसे लिखो, then multiplicative inverse is z1 equals to a plus ib. अच्छा, यहां पर what do you mean by this multiplicative inverse? What do you know about this multiplicative inverse? And I think in class 6, 7 and the CBSE students, I think you might have got this multiplicative inverse, additive inverse concepts in class 7, and the state board, different state board students, I think you have got this concept in class 6 or 7. Okay, both the boards, I think you have got this concept, multiplicative inverse and this additive inverse. So now let me know, what do you mean by this multiplicative inverse, right? And how it can be expressed and how it can be written also. Okay, no? So that means, just let me tell you one thing, multiplicative inverse क्या है. ठीक है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास 2 एक नंबर है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 निकलता है. 2 के साथ क्या, what should be multiplied with this 2 for getting 1? I think half. So half will be the multiplicative inverse, right? And answer is 1. That means इस चीज को बोला जाता है multiplicative identity. So that means so a number will be given. Okay, now you need to figure out another number which are going to be multiplied, okay, with this particular number, and the answer will be 1. Then that particular number will be the multiplicative inverse number. That means here 2 is the normal number and the half is the multiplicative inverse number. That means 2 का multiplicative inverse क्या होगा, half होगा. 3 इसका multiplicative inverse क्या होगा, 1/3. 4 उसका multiplicative inverse क्या होगा, 1/4. तो ये है रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स नंबर में ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट आपका वही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. दैट मींस यहां पर आपने z नंबर लिया है,
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को आपने Z1 लिया है, दैट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई दिस Z1 with this Z, then answer will be 1. Concepts will be same. This Z1 will be the multiplicative inverse. So लिखो here यहाँ पर लिखो here Z into Z1 equals to 1 because Z1 यहाँ पर MI है. MI मतलब MI मोबाइल नहीं, MI मतलब multiplicative inverse and it is multiplicative identity. ठीक है, तो Z into Z पर अगर 1 हुआ so that means X plus IY और इधर A plus IB equals to 1. ठीक है. Now you need to find the values of A and B because this expression is the assumption. You need to find the perfect value, the specified value of A and B, then only you can get the multiplicative inverse. Okay? So at first you need to find the values of A and B. So how can you find the values of A and B here? Now we are proceeding this calculation. AX plus I into BX plus I into AY plus I square BY equals to 1. So that means AX plus I common, BX plus AY, and this I square means what? Minus 1. Minus 1. BY equals to 1. So this minus plus minus क्या होता है? माइनस नहीं होता है क्या? तो एक साथ ऐसे माइनस दे देते हैं ना, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगा. So AX minus BY plus I into BX plus AY equals to 1. Now the question is, if you want to find two unknowns values, then linear equations of two variables should have been there. So without getting these two equations regarding these two variables x and y, you can't find the values of x and y. मतलब है यहाँ पर हिंदी में बोले तो आपको x और y दो, that means यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है. that means दो अननोन का वैल्यू निकालना है यहाँ पर. ठीक है, अब दो अननोन्स का वैल्यू निकालना है तो आपको तो यहाँ पर दो ही इक्वेशन चाहिए. यहाँ पर तो मुझे एक ही इक्वेशन दिखाई दे रहा है, सो दूसरा इक्वेशन मैं कहां से लाऊं? तो जब आप एक मतलब इस सिचुएशन में अगर फंस जाए, आपके पास एक ही प्रोसेस है, वो है कंपेयरिंग मेथड. कैसे? देखो ये 1 है ना, इससे में क्या है? 1 है. देखो कैसे लिख रहे हैं, x माइनस बी वाई प्लस आई बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 को देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस 0 इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं. 0 इंटू आई, 0 ही तो होता है. अब दोनों साइड में कंपेयर करें, ये इक्वल्स टू 1 और आई के साथ यहां पर क्या है ये, और आई के साथ यहां पर क्या है 0. सो दैट मीन्स कंपेयरिंग लिखो, कंपेयरिंग ax minus by equals to 1, it is your equation number 1, and bx plus ay equals to 0, it is your equation number 2. Now solving equation 2, equation 1 and 2, you need to find the values of a and b here. Okay, इस रियल नंबर है ना, x और y रियल नंबर है. ठीक है, सो दैट मीन्स ए बी जो बात है, एक्स और वाई एक ही मतलब कॉन्सेप्ट को यह रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर मुझे ए का वैल्यू चाहिए, तो दैट मीन्स या फिर बी का वैल्यू. तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो दोनों इक्वेशन का अगर मैं सॉल्व करूं, एक काम करते हूं, इसको x से करते हैं तो y से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स. वाई करने से क्या होता है,
बी एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। सो देखो यहां पर क्या आएगा, ये दोनों अगर मैं ऐड करूं, नाउ एडिंग ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स, बी एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दोनों अगर मैं एडिंग करूं, ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाता है। इट मींस ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो यहां से ए का वैल्यू अगर मैं निकालूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ए इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम टू सेकेंड इक्वेशन में थोड़ा इजी लगता है। इट मींस बी एक्स प्लस ए वाई है ना, तो ए की जगह यहां पर x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं, बी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स यहां पर एक्स एक्स कैंसिल, देयर इज माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ए और बी का वैल्यू मिल गया, तो यहां पर ए और बी का वैल्यू बिठा सकते हैं क्या। So the multiplicative inverse is z equals to क्या, a प्लस आई बी था, तो z equals to a मतलब क्या है, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर b का वैल्यू क्या मिला, माइनस आई y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये Z1 है ना, तो Z1 का मिला। सो इट इज द रिक्वायर्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ किसका, Z का। Z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, ये तो हम लोगों ने एज्यूम किया था। ठीक है ना, तो यहां पर आपको वैल्यू मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जाएंगे, फिफ्थ। ऐसे बहुत सारा है प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज आपको बहुत सारा मिलेगा, है कि नहीं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड होल स्क्वायर, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड होल स्क्वायर। ये प्रूफ, मतलब ये प्रूफ करना है। नाउ हियर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और z बार क्या होगा, कॉन्जुगेट होने से क्या होगा, उल्टा लिख दो, x माइनस आई वाई। सो z इंटू जेड बार मतलब x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई, a प्लस बी, a माइनस बी, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, किसका है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, so that means स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर, that means एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का वैल्यू तो शायद मुझे -1 मिला था, सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1 वाई स्क्वायर, सिंस आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, सो that means एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकला है ना आंसर। इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, मैं रूट दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से ऊपर होल स्क्वायर दे रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, मॉड जेड है ना। देखो मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो, तो मॉड जेड का आंसर क्या निकला था, मतलब निकला था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, निकला नहीं था, राइट। ऊपर क्या है, स्क्वायर है ना, तो आ गया ना। सो जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड जेड होल स्क्वायर, ये भी एक प्रॉपर्टी आपको मिल गया। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी नंबर 6, जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टू 2
REZ ये दिखाना है, ठीक है। हियर ये प्रूफ करके देखेंगे अभी। Z इक्वल्स टू क्या है, x प्लस आई वाई। Z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। तो Z प्लस Z बार क्या होगा, x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, कैंसिल। इट मीन्स ट्वाइस x। x क्या है, मैंने क्या बोला था, x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, REZ नहीं लिख सकते क्या। देखो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिखा है, x मतलब है टू, मतलब रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z लिख सकते हैं ना ऐसे, रियल पार्ट ऑफ z। z माइनस z बार करके देखो, z माइनस z बार 2 इंटू इम z आएगा। ऐसी सेवेंथ प्रॉपर्टी लिखो, ऐसी सेवेंथ, यहाँ पर z माइनस और यहाँ पर r के जगह इम होगा, तो ये माइनस होगा, तो देखते हैं ये माइनस होगा, ये प्लस, तो आई वाई के जगह कौन सा कैंसिल होगा अभी, आई वाई एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो यहां पर आंसर आएगा 2 इंटू आई इंटू वाई, है कि नहीं। तो z माइनस जेड बार इक्वल्स टू 2 इंटू आई इंटू, ये y क्या है, y को मैंने क्या बोला था, इन z, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि नहीं। So just like this, the different properties and different things are there regarding this complex number concept. Okay, that will not be finished. Okay, one by one, that means yeah, I think you will get this type of properties. Okay, so 8 property लिखो, 8 property, property number 8। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, Z1 प्लस Z2 होल बार इक्वल्स टू Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है। लेट Z1 इक्वल्स टू X1 प्लस I Y1, Z2 इक्वल्स टू X2 प्लस I Y2। सो यहां से Z1 बार दैट मीन्स conjugate X1 माइनस I Y1, Z2 बार that means X2 minus I Y2, ठीक है। सो अब निकालो Z1 प्लस Z2 मतलब क्या है, X1 प्लस I Y1 प्लस X2 प्लस I Y2। सो दैट मीन्स X1 प्लस X2 एक जगह रहेगा और उधर I कॉमन लेके Y1 प्लस Y2 एक जगह रहेगा। दैट मीन्स Z1 प्लस Z2 आपको ये मिला, है कि नहीं। तो Z1 प्लस Z2 उसका बार क्या होगा, दैट मीन्स कॉन्जुगेट क्या होगा, सेम ही होगा, जस्ट मिडिल में माइनस साइन आ जाएगा, माइनस I Y1 प्लस Y2, है कि नहीं। Z1 प्लस Z2 तो आपने निकाल लिया, उसके ऊपर होल अपने बार दैट मीन्स होल कॉन्जुगेट ले लिया, दैट मीन्स पूरा का कॉन्जुगेट लिया है, तो पूरा इसका पूरा लिया है तो उसका भी पूरा ही लेना पड़ेगा आपको। तो ये पूरा उसका कंजुगेट क्या होगा, ये प्लस है, बीच में माइनस कर दो, कंजुगेट में। नाउ Z1 बार Z2 बार, इसका आंसर निकाल के देखो तो क्या हो रहा है, Z1 बार दैट मीन्स X1 माइनस I Y1 X2 माइनस I Y2, दैट मीन्स X1 प्लस X2 माइनस कॉमन लेके माइनस I Y1 प्लस Y2। ये देखो सेम आ रहा है कि नहीं, हाँ सेम ही तो आंसर आ रहा है। तो दैट मीन्स इसको ऐसे नहीं लिख सकते Z1 प्लस Z2 होल बार, इसका मतलब है Z1 बार प्लस Z2 बार, है कि नहीं है। सो ऐसे ही आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये तो सिर्फ 8 प्रॉपर्टीज है, ऐसे बहुत सारा प्रॉपर्टीज है आपको मिलेगा। सो other properties just we will discuss, it is just starting lecture, I don't want to make it matlab longer, so we need to stop here. In the next lecture we will discuss different properties and the problems also regarding this complex number, okay,
and various theorems and various calculations and the properties, problems will be discussed in the next lecture. Okay, and see you in the next lecture as well. And if you like my videos, then please subscribe, like and share my channel. Okay, and thank you very much for joining my classes, and till then stay safe and stay healthy. Bye and Jai Hind.